ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਿੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਸਾਖੀ ਸਾਹਾ ਐਂਡ ਸੱਚ ਐਨ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਈਵਨ ਇਮੈਜਿਨ ਵਟ ਯੂ ਵੈਂਟ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਟਾਈਮਸ ਜਦ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਮੀ ਤੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਟ ਇਫ ਆਈ ਗੈਟ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ I'll probably end up being the saddest person on earth and ਜਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਲੜਨਾ, it's very important and hats off to you that you did that. I can see ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ viewers ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. So we will start taking calls. We will take our first one. Hello. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ the most inspirational woman that I have met. She's so young and ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ and you can't even imagine what she has gone through. Welcome to Just Punjabi and Khiri Dupahar Baisakhi. Thank you, beautiful Jasprit. story. You are an inspiration to us. Thank you so much, Jasprit. And Nice I to hear want to that. say, I believe two things. Spirituality ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ Number one, God never gives you more than you can handle. And That's number right. two, what doesn't kill you makes you stronger. So Wow. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, mind body connection and not strong, you can, if you take that first step, that baby step, God will be there all the way guiding you and helping you. And that's, it takes a lot of willpower. Tika, we go through so many difficult times in life and so many changes. We can't believe that we have it in us to face those things. But we can do it, it just, that's what I believe spirituality is. Like, God given gifts and talents, everybody has those. Then we help others with those things that God has given us. that is so true. And I completely agree with ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਨ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੋ. Correct. And so we just need to believe it कि जे इतना pain आई है, so I can actually handle और it. हमेशा उस पेन में ना एक मीनिंग है, क्योंकि वो चैलेंज एक्चुअली हमारे अंदर वो डिज़ायर देते हैं फॉर समथिंग इन कॉन्ट्रास्ट. सो दैट इज़ हाउ वी एक्सपैंड, द सोल एक्सपैंड्स. तो जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, लोग डर जाते हैं, बट एक्चुअली वो चैलेंज इसीलिए आते हैं कि हम और एक्सपैंड कर सके और बड़े बड़े चीज़ कर सके, तो उस टाइम तो मुझे ये सब पता नहीं था. अब है, मैंने बुक लिखा है तो. बट थैंक यू फॉर दोज एनकरेजिंग वर्ड्स एंड फॉर वेलकमिंग मी. आई रियली अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स, जसप्रीत जी. सत श्री अकाल. and every Friday we will teach Baisakhi Punjabi. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ and she will sit here with me with her pen and paper, not my pen and paper, Right, so that you right. will write it down and you will learn Punjabi with us. Sure, We sure. will take our next I call. would love to learn it. Hello. Hello? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ. ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼. ਤੁਸੀਂ do you want me to speak in English or do you want me to speak more in Punjabi? ਮੋਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ. Oh, okay, for that I am. मैं पंजाबी बोल ही रही हाँ, no worries. ठीक है? ਯਾ ਬਈ ਓਕੇ ਬਾਏ. Okay, thank you. And ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸਾਖੀ is from Bengal. ਮਗਰ ਉਹ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ. ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. Correct. Okay, Right. we'll take our next one. Hello. Hello. All right, call us back. So ਬਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਦ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਗਏ. Your path to spirituality. Actually, you've written it all in your book. What inspired you to write that book? Okay, very good question. ये एक और स्टोरी है. तो So फिर पहला ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ.
हाँ, मतलब हर स्टोरी में और हम खींच सकते हैं बहुत ज़्यादा, अगर डिटेल में जानना हो और बता सकते हैं, बट अगर बुक की स्टोरी जानना हो तो मैं उसको शॉर्ट में बता देती हूँ, Okay. बाद में उसको बाद में- हम एलैबोरेट कर सकते हैं। डेफिनेटली। डिफरेंट शोज और भी शोज आएंगे तो उसमें हम बिल्कुल। कर सकते हैं। सो बुक। अच्छा, तो मैं फिर जर्मनी होके जब वापस आई तो हाउ अंग्रेजी में कहते हैं यू कैच द ट्रैवल बग, यू नो। तो वो बग जो होते हैं, बेड बग्स होते हैं, एक बार काट लेना, बार बार काटते रहते हैं जब तक तुम वो ट्रेवल bug- करन दा कीड़ा काट हाँ, लड़ गया था। ट्रैवल वाला कीड़ा मुझे काट लिया था। तो मैं तो यूनिवर्सिटी में ही थी। फिर मैंने जब ग्रेजुएशन ख़त्म किया, यू नो द नेचुरल नेक्स्ट जो चॉइस होना था वो था कोई जॉब लूँ वहाँ पे, सिंगापुर में जॉब करूँ। बट यूरोप आने के बाद इतना मैजिकल वो एक्सपीरियंस था। 1 मंथ यूरोप में होके आई, सारे जर्मन फ्रेंड्स से मिल के आई, सबके घर में 2-2 दिन रह के आई, यू नो। तो 1 मंथ मेरा बोरिंग नहीं गया, यू नो। और सब मुझे इतना दिखा रहे थे, हमारी एशिया से फ्रेंड आई है, यू नो, दैट वे। तो जब मैं वापस आई तो जॉब लेने की जगह मैं हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स कराते हैं, मैंने वो ज्वाइन किया। और पहली एक्सचेंज जो मैंने किया वो अफ्रीका में हुआ। तो मैं 2007 में अफ्रीका गई थी, वहाँ मैं 1.5 साल रही, वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया, फिर उसके बाद कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया। तो अफ्रीका जब मैं गई, वहाँ जो रियलिटी थी, वहाँ जो मतलब इतना अलग है कोई भी दुनिया के और जगह से ना। जैसे फॉर एग्जांपल नाइजीरिया में, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और वहाँ पे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 20 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। Okay. और जब इलेक्ट्रिसिटी आती थी मिडनाइट को आती थी, रात के 1-2 बजे आती थी, 1 घंटा 2 घंटा के लिए, 2 घंटों के लिए आते थे, फिर चले जाते थे। अब इमेजिन जो नॉर्मल लोग हैं नाइजीरिया में, वो उनके पास पैसा नहीं है कि वो जनरेटर लाए, उसमें फ्यूल डाले और करे, यू नो। तो लिटरली अफ्रीका और दैट कंट्री, देयर पीपल लिव्ड इन डार्कनेस, जो हम कहते हैं ना, अफ्रीका इज़ द डार्क कॉन्टिनेंट, जो भी कहते हैं। तो वहाँ पे मैं सोच रही हूँ सेल फोन्स ले लो, तुम सेल फोन को चार्ज भी नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यू नो। तो वहाँ के वो एक्सट्रीम जो रियलिटीज़ थे, इतना ज़्यादा करप्शन, इतना ज़्यादा किडनैपिंग्स होते थे, क्राइम होते थे। मेरा घर जहाँ पे था ना, एकदम गेटो, वहाँ पे ना गेटो फाइट्स, गैंग फाइट्स होता था। और मैं एक अफ्रीकन फैमिली के साथ रहती थी। और अफ्रीका में, नाइजीरिया में भी काफ़ी मैंने ट्रैवल किया था मेरे काम के सिलसिला में। तो बहुत चीज़ें मुझे देखने को मिला मेरे घर के सामने, यू नो, लोग भूखे मर रहे, लिटरली डेड, यू नो। आज मैंने उसको देखा कि बाहर खड़े बैठे थे, कल मैं ऑफिस जा रही थी, वहीं सेम स्पॉट पे मरा हुआ है, यू नो। जब ऐसे चीज़ें मैं देखने लगी तो कुछ, यू नो, अंदर कुछ तो जागने लगा, यू नो, कि ज़िंदगी है क्या, यू नो। और मैं तो निकली ही थी तब, मुझे पता नहीं था, मैं अपने अंदर से बचपन से ही ज़िंदगी का मतलब ढूंढ रही थी कि ज़िंदगी क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो अफ्रीका का, जब मैं अफ्रीका में थी, ऑलमोस्ट अफ्रीका ख़त्म हो रहा था मेरा इंटर्नशिप, तो मैंने अपने माइंड में, तब तक मुझे माइंड बॉडी का कनेक्शन तो पता चल ही गया था क्योंकि मैं जो भी सृष्टि कर रही थी, मेरे लाइफ में जो भी हो रहा था, बहुत सारे मैजिकल मिराक्युलस स्टोरीज़ है, छोटे छोटे स्टोरीज़ जो मैं कभी और सुनाऊंगी। तो मैंने ना मैजिक 9 मेरा बुक का जो नाम है, मैंने अफ्रीका में 2008 था तब, तो मैंने मैजिक 9 अपने माइंड में बनाया कि ये है मैजिक 9 और ये मैजिक 9 होगा। और उसका डेट मैंने रखा था 999, 9 सितंबर 2009, मतलब 1 साल बाद में मैजिक 9 होगा। तो 9 मेरा फेवरेट नंबर था बचपन से। और मैंने जब ये अफ्रीका में, नाइजीरिया में बैठ के मैंने ये 999 बनाया,
तब मुझे कुछ पता नहीं था मैं 2009 में कहाँ होंगी, मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं पता था। तो अफ्रीका का एक्सचेंज जब ख़त्म हुआ, मैं घर आई, इंडिया वापस आई, तो एकदम से मैं ये नंबर 9 देखने लगी। जहाँ भी जाती थी मैं घड़ी उठाऊँ 909, और 9 एक ऐसा नंबर है, उसके जितने भी मल्टीपल्स है ना, तुम उसको ऐड करोगे तो वो 9 होगा। जैसे 9 टाइम्स 2 18, 1 + 8 इज़ अ 9, 9 टाइम्स 3 27। सो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर एक्चुअली 9s। तो मुझे हर जगह 9 दिखता था। तो मुझे लगा ये यूनिवर्स इज़ रिस्पॉन्डिंग बैक टू दैट मैजिक 9 विच आई क्रिएटेड इन माई माइंड। और इन 2009 मैंने अपने आप को वेनेजुएला में पाया। मैं तब वेनेजुएला चली गई थी क्योंकि अफ्रीका के बाद ना मुझे और ट्रैवल करना था, और अफ्रीका में इतना इंटेंस लाइफ गुजारने के बाद मुझे यूरोप नहीं अच्छा लगता था। फिर अफ्रीका जाने से पहले मैं सोचती थी मैं यूरोप में ही सेटल करूँगी, बट आफ्टर आई वेंट टू अफ्रीका मुझे लगा नहीं, मुझे और ज़िंदगी देखना है। तो मैंने साउथ अमेरिका चूज़ किया। साउथ अमेरिका में भी चॉइस थी, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो मैं जॉब चूज़ कर रही थी, बट एंड में वेनेजुएला आया। वेनेजुएला में मैं एक शहर में रहती थी जिसका नाम है माराकाइबो। बाद में मैंने देखा वेनेजुएला जो शब्द है उसमें कितने लेटर्स है, 9। माराकाइबो में मैं रहती थी, जबकि वेनेजुएला का कैपिटल है कराकस। कराकस इज़ 7 लेटर्स। मैं माराकाइबो में रहती थी, माराकाइबो हैज़ 9 लेटर्स। तो मैं जहाँ भी जिस फैमिली के साथ, होस्ट फैमिली के साथ मैं रहती थी, उनका नाम था कॉन्ट्रेरास। सो कॉन्ट्रेरास में भी 9 लेटर्स है। और द 9th मंथ जो सितंबर है, सितंबर में 9 लेटर्स, और कोई भी मंथ में 9 लेटर्स नहीं है, सिर्फ सितंबर में है। और 999 एक वेंसडे था, वेंसडे में भी 9 लेटर्स है। ओके। और स्पेनिश में, वहाँ पे तो स्पेनिश बोलते हैं, स्पेनिश में वेंसडे मियरकोलेस बोलते हैं, उसमें भी 9 लेटर्स है। और ये सब मैं वेनेजुएला जाने के बाद नोटिस किया। मैंने देखा कि हर जगह मुझे 9 दिख रहा है, क्योंकि मैंने वो मैजिक 9 बनाया। तो मेरा जो बुक है मैजिक 9, मैं उसका स्टोरी नहीं बताऊंगी क्योंकि लोगों का सरप्राइज चला जाएगा, बट मैजिक 9 का स्टोरी 999 को शुरू हुआ। फिर 5 साल बाद, वेनेजुएला में मैं 2 साल थी, फिर नेक्स्ट एक्सचेंज में कोस्टा रिका आ गई थी, और मैंने वेनेजुएला में ये बुक लिखना शुरू किया। और जब मैं कोस्टा रिका पहुँची, मैंने लिखना कंटिन्यू किया। 3 साल मैंने ये बुक लिखा, उसमें 600 से भी ज़्यादा पेजेस है, और बिल्कुल अनएडिटेड मैंने उसको पब्लिश किया, क्योंकि वो एक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी बोलो, जो भी मेरी लाइफ की जर्नी है। जो भी मैंने 3 साल से उसमें लिखा था, मैं उसको एडिट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं एडिट करूँगी तो लोगों को पूरा पिक्चर नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल अनएडिटेड है वो बुक, उस रॉ फॉर्म में जैसे मैंने लिखा था, मुझे इंस्पिरेशन आता था, मैं लिखती थी। और वो 3 साल मैं इतना इंट्रोवर्टेड बन गई थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं रूम के अंदर रहती थी, इंस्पिरेशन आती थी तो मैं लिखती थी। फिर कोस्टा रिका में मैंने वो बुक लिखना ख़त्म किया, और कोस्टा रिका में भी 9 लेटर्स है। कोस्टा रिका में जहाँ रहती थी, रोडमोसर, वो भी 9 लेटर्स है। Wow. तो ये है synchronicity। So many 9s, oh my god। ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। So we'll take a short break ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। We'll be right back।